हेलो। हाँ फलक मैम। Yes, sir, I am here. यस। हाँ फलक मैम हमारे बीच में है और हम आप सबों की तरफ से फलक मैम का स्वागत करते हैं इस बच्चों की मीटिंग में। और ये मीटिंग जो है ना खासकर हमारे काम से ज़्यादा और मैम के काम से ज़्यादा ये खास आप लोगों के लिए है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। और बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हम लोग किस प्रकार से विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। और शॉर्टकट्स जो होता है ना शॉर्टकट को छोड़कर हम लोग किस प्रकार से मतलब कि अच्छी चीजों के लिए काम कर सकते हैं। मतलब एक तरीका होता है ना कंसिस्टेंट मेहनत करना और किसी चीज को लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी हो जाना। तो वो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे मैम के साथ भी। मैम बहुत ही कूल है इस मामले में और बहुत ही बच्चों के साथ बहुत जुड़ी रहती हैं, यूनिवर्सिटीज के बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी बहुत काम करते रहती हैं वो। तो हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आज आप लोगों का दिन है। तो ज्योत्सना, तो ज्योत्सना से आग्रह है कि आज ये मीटिंग में एक चीज ध्यान रखना है हम लोग की हमें आप हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और चूंकि हमारी मातृभाषा है ये और आज का दिन खास है तो हम लोग उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे और हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने देश से और अपनी संस्कृति से और अपने जो भी हमारे जो पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्योत्सना प्लीज आप इसको आप आगे बढ़ाइए इसको। Thank you, sir. Thank you, sir. First Good of all, evening, thank you everyone. Okay, ma'am. for giving me this opportunity कि आप लोग के बीच आऊँ और फिर आप लोग के बीच अपनी बातों को रखूँ। सबसे पहले थैंक्स सर आपको सबसे पहले, और आप शुरू करें। हाँ Thank यस you, ma'am. ज्योत्सना। Good You can evening, start. everyone. Yes, ma'am. Today is a really special day for our nation. People all over India is celebrating Republic Day and a really cheerful and soulful occasion, Saraswati Puja. On this crucial day, we have a really special guest today with us. She is an inspiration to all. She has done tremendous work and has inspired many people to do so. She has contributed in securing the future of the youth and our nation. So we all must get inspired from her journey and her ambition to do so. Ma'am, the first question that I want to ask you that can you please explain your journey from your school life, from your childhood to the day that when you walked in the president in the Rashtrapati Bhavan to get the president's award? Please, ma'am. Thank you, Jyotsna, for asking such a beautiful question. First of all, you know my name. You all know my name. My name is Falak Fatima, and this is President Awardee. Last year I got this award on 24th of September 2022. My journey was really incredible, awesome, amazing. Basically, I am my hometown is Dhanbad, and from Dhanbad to Ranchi and Ranchi to Rashtrapati Bhavan. It's such a big journey. I got this opportunity through NSS. NSS is the National Service Scheme, which who provided me such a beautiful opportunity to lead my Jharkhand state, to represent Ranchi University. It seems like my dreams come true on that day of 24th September 2022. Really, if I'm going to tell about my journey, I'm social activist from year 2016. My passion is social work. I'm devoted myself to do lot of social work. Like I've done a lot of plantation event, blood donation camp, awareness camp, and many more. Like I aware people to do lot of social work, like basically in the Hatma village. You know the name of Hatma village, and you don't know, I don't think so, you know about that place. Basically in the COVID-19, we all worked hard to do something for the poor people who need help. In the COVID-19 we worked so hard, so I got this opportunity to lead my state, to lead my university. That's it. Thank you. तो अगर अगर हम लोग आज का क्वेश्चन जो है ना वो हिंदी में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितने भी हैं अ, वो हिंदी में ही पूछे बहुत अच्छा लगेगा।
क्योंकि आज का दिन जो है ना मातृभाषा और कनेक्टिविटी का दिन है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला कौन है, पूछिए अपना क्वेश्चन। Yes, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, what are the responsibilities of NSS volunteer and how can we join it? NSS means National Service Scheme. Its motto is not me but you. समाज में जब आप दूसरों के प्रति कार्य करते हो, इफ यू डू समथिंग फॉर योर स्टेट और समथिंग फॉर सोसाइटी, इट्स बेसिकली मीन कि आप क्या कर रहे हो अपने समाज के लिए, कैसे कर रहे हो अपने समाज के लिए, कितना बेहतर बना सकते हो अपनी सोसाइटी को। दैट्स मीन द रियली थिंग दैट यू हैव टू डू इज डिवोट योर सेल्फ फॉर नेशन। एनएसएस का मतलब बस ये होता है कि आप अपने को कैसे समाज के प्रति डिवोट कर रहे हो, कैसे समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हो कि समाज आपका बेहतरीन और खूबसूरत बन रहा है, जिससे कि लोगों को कुछ मिल रहा है, कुछ चीज वो पा पा पाएगा। जैसे कि नॉट मी बट यू, मतलब अपने से पहले आप दूसरों के प्रति कुछ करते हो, कुछ सोचते हो, वो है एनएसएस। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप टेंथ के बाद स्कूल लेवल में भी ये होती है और ये यूनिवर्सिटी लेवल में भी होती है। तो फिर आप एनसीसी जैसे होता है वैसे ही एनएसएस भी होता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो स्कूल में पीओ के थ्रू, और फिर ये आप अपने मतलब कि आपके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स बनते हैं तो स्टेट के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं सर को बता दूंगी इसके रिगार्डिंग। एक एक क्वेश्चन था यहाँ पर फलक कि एनएसएस और स्काउट एंड गाइड, जैसे बच्चे अगर इसको ये करें कि एनएसएस और स्काउट एंड गाइड दोनों सेम होता है या फिर दोनों में अलग कुछ डिफरेंस होता है दोनों में? सर बेसिकली दोनों डिफरेंट होता है, क्योंकि एनएसएस जो है आपका सोशल हो जाता है, ये मतलब कि आपको सोशल कनेक्टिविटी देता है। ये एनसीसी जैसे आपने देखा होगा, आज राष्ट्रपति भवन में जो परेड करते हैं बच्चे, तो सबको के अलग अलग होते हैं, मतलब कि एनसीसी के अलग होते हैं, एनएसएस के अलग होते हैं। तो जो बच्चा एनसीसी से जुड़ा होता है वो एनएसएस में नहीं होता है। और ये एनएसएस ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको कि आप सोशली वर्क करो और एक बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। यस, बहुत अच्छा, यस। चलिए, और सुशांत? यस सर। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए रानी। पहले आप अनम्यूट कर लीजिएगा रानी। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन लक्ष्मी। लक्ष्मी, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा है। To use that, what skills are required in this position rather than academic? You have to be social. आप जितना सोशल रहोगे उतना आपको ये अचीवमेंट, मतलब कि बस आपको सोशल रहना है। जैसे कि आई हैव डन माय एमएससी इन बॉटनी, आफ्टर दैट करेंटली आई एम डूइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा आपको मतलब कि एकेडमिक के अलावा आपको कुछ ज्वाइन करना या रहना, यू हैव टू बी सोशल। जैसे कि मैंने कहा कि 2016 से मैं सोशली एक्टिव हूँ, तो सोशली रहने के लिए आपको एक पंक्चुअल होना होगा। यू हैव टू डू वर्क हार्ड। आप किसी भी पैशन में हो, मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको खुद को सोशल, जैसे कि आप हम लोग क्या देखते हैं हमारे सोसाइटी में कि जो कोई गरीब है, या आप देखते होगे कि बेगर जो मांगते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो कितने परेशान है और किस हाल में। आप उसको देख करके अपने दिल में जो इमोशंस क्रिएट करते हो और इमोशन क्रिएट करके उनके लिए फिक्र करते हो, तो वो स्किल और वो चीजें आपको एकेडमिक के अलावा अगर चाहिए तो आपको अपने आप को सोशल बनाना होगा। यू हैव टू बी सोशल ओनली। यस, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज तो समझ में आ गया ना कि आपको कि हमें सोशल ज्यादा होना है और लोगों के प्रॉब्लम के साथ रिलेट करना होगा, उनके साथ कनेक्ट होना होगा। ठीक है, तो जब आप लोगों के प्रॉब्लम, यस यस, यू नीड ओनली वन, हाँ यस yes, हाँ, you need only one position you required. You have to be social as much as you can. जितना ज्यादा हो सके
यू हैव टू बी सोशल। और जितना सोशल हो गया, आई डोंट नो कि मेरे को ये कभी भी नहीं पता था कि मेरे को इस पोजीशन में और इस जगह में पहुंच पाऊंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड इसी सब चीजों की वजह से मुझे ये पोजीशन, ये ग्रेड, ये टाइटल हासिल हुई है। हाँ, इसमें एक चीज और क्या है ना जोड़ने का, कि कभी भी हमें किसी प्राइस को लेकर के सोशल नहीं होना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए अब हमें भी उसके लिए अचीव करना है, वो सोशल बन जाएंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आपको नेचर में लाना होगा। आप जब दूसरों के प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे ना, तो अपने आप आपके अंदर आएगा, और जब आप शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप सब कुछ मिलना भी शुरू हो जाता है। तो ये वो इच्छा करके नहीं करना है। ठीक है, चलिए कनक अपना क्वेश्चन पूछिए अगला। Yes. Good evening, ma'am. First of Good all, I evening. would like to wish you a very happy Republic Day and Saraswati Puja. Happy Saraswati Puja. Same to you. हाँ, कनेक्टिविटी। So, ma'am, my question to you is that who supported you most in this journey, in your journey? Who supported you the most? My mother. Voice. Hello, I'm audible to you? Yes, ma'am. हाँ, yes ma'am। बस मेरी माँ जिसने मुझे हद से ज्यादा सपोर्ट किया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला अवश्य। गुड इवनिंग मैम। मैम माय क्वेश्चन इज, जब आपको पता चला कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिलने वाला, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं बता रही हूँ। आप कौन सी क्लास से हो? 9th। नहीं, तुम्हारी फेस नहीं दिख रही। दिखो, इतनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। अवश्य वीडियो ऑन कर लो बेटा। ऐसा नहीं। हाँ, क्या बात। बहुत प्यारी आवाज है तुम्हारी। हाँ, आपका क्वेश्चन था कि आप कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? यस। जब आपको पता चला कि आपको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिलने वाला है, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं उस टाइम बहुत मतलब कि मेरी एग्जाम चल रही थी, तो फिर मुझे याद है कि मैं बाहर थी। बस हम लोग मेल चेक कर रहे थे हमेशा। मेल एक्चुअली मेरे को लग रहा था, कहीं ना कहीं मेरे को ये फील हो रहा था कि शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपका 1 साल के बाद इसकी रिजल्ट आई थी, और फिर उसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क करा था। 100 पेजेस की फाइल लगाई थी, और फिर उसमें हमने बहुत मेहनत किया था। और हमें पता चल गया था कि वो रिजल्ट, क्योंकि कोविड की वजह से रिजल्ट आपकी बैक चल रही थी। अभी भी हमें 2021 का ये पुरस्कार मिला है। तो फिर जब मुझे पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो बस कॉल्स, फोन्स, फिर दिल्ली से कॉल्स, फिर मिनिस्ट्री से कॉल आ रही थी। पूरे स्टेट में एक मतलब कि होता है ना कि तूफान सा हो जाना, स्टॉर्म आ जाना, लाइक वैसे ही बहुत अच्छा मूवमेंट था मेरे लिए। और मैं उस टाइम में क्या हुआ था कि मुझे वो खुशी हो रही थी कि ये मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे जो फ्रेंड्स थे और जिन्होंने मेरे साथ मतलब कि हमेशा कनेक्ट रखा था खुद को, तो उन्हें पता था कि बेसिकली किसी को पता नहीं होता है कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, कुछ अच्छा वर्क कर रहे हो, तो सबको को नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो वो मेरे हार्डवर्क का, मेरे पैशन का सबका रिजल्ट था। वो उसे मैं ये कह सकती हूँ, वो मेरा रिजल्ट था, जो कि मुझे उस दिन पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। और ये पूरे रांची यूनिवर्सिटी का फर्स्ट अवार्ड था जो कि मुझे मिला। इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, कि जब आपको अपने काम के लिए कुछ मिलता है ना, तो उसका एक खुशी अलग होता है। और जब आपको मिलता है तो सरप्राइज जैसा लगता है ना, अचानक से तो लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, और ये हो कैसे गया। आपको कुछ टाइम तो बिलीव नहीं होगा कि मैं इसके लायक था, नहीं था, मैंने क्या किया, मैं तो केवल अपना काम कर रहा था। तो सचमुच जो प्राइजेस होते हैं ना, वो आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं और लोग उसको पहचानते हैं। एक प्रकार से एक बूस्टअप होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करता है। तो हमें
इस तरह से आगे जैसे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलता है और अच्छा भी होता है। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग के एग्जाम्स आते हैं, तो आपको पता नहीं रहता है कि आप टॉप कर रहे हो क्या रिजल्ट कर रही है। आप लोग को बेसिकली आप लोग को कुछ पता नहीं होता है, बट आप लोग मेहनत करते हो। जैसे आपको कंटिन्यूटी चाहिए हर काम के लिए, कि आप उसको कंटिन्यूस करते रहो, और पंक्चुअल भी पंक्चुअल। तो किसी भी काम को और किसी चीज को हासिल करने के लिए आपको मेहनत के साथ ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है, और पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है। उसके बहुत बाद ही जरूरी है। आपको कोई चीज हासिल हो पाता है। तो जैसे कि मैंने काम किया, तो मुझे 80% चांसेस था कि वो मुझे हासिल हो सकता है। 20% ये था कि वो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि आपका किस्मत कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। तो वो मेरे यूनिवर्सिटी को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे स्टेट को एक बहुत गर्व की बात थी। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग जो हमारे अपकमिंग यूथ ऑफ आवर नेशन, आप लोग जो हमारे सामने हो, तो आप लोग भी एक अच्छे मुकाम तक जो कुछ हासिल करो और कुछ बड़ा करो। क्योंकि लाइफ में जिंदगी तो सबको ही जीते हैं ना, तो अब जिंदगी में दूसरों को खुशी देने के लिए कुछ बेहतरीन करो, जिससे कि आपके पेरेंट्स को, आपको एक गर्व महसूस हो कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा कार्य किया, जिसके लिए उन्हें इतना अच्छा रिवॉर्ड एज अ अवार्ड मिल रहा है। हम्म। ये बहुत अच्छी बात है। अगला थैंक यू सर। प्रश्न किनका था? हेलो मैम, गुड इवनिंग। मेरा नाम अरीन है गुड और इवनिंग। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आप कई सारी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या आप इतने में सेटिस्फाइड हैं या फिर आपका कुछ और ड्रीम है? नहीं, इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसे और बेहतर करने का, मैं खुश हूँ इन सब चीजों से, बट मुझे सोशल रहना पसंद है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं सोशल रह करके लोगों का हेल्प करूं। जैसे कि मैंने बताया कि एनएसएस का हमारे बीच मोटो क्या होता है, नॉट मी बट यू। तो ये मेरे पूरे ब्लड में है। ये मेरे को फील होता है कि मेरे को कुछ बड़ा करना है अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए। जिससे कि जो हमारे जैसे कि मैंने अभी बताया नहीं कि मेरे को अभी चांस मिला था इंदौर में प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस में हम्म। जाने का मौका मिला था। इसमें क्या होता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं जो आपके इंडिया के बाहर हैं, वो लोग आते हैं। उसमें मौका मिला। इसके अलावा नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटका से अभी मैं कुछ दिन पहले आई हूँ। तो ये सब चीजों का मुझे मौका मिल रहा है, और मैं अपने आप को और भी ज्यादा मतलब कि समझ रही हूँ चीजों को लेकर कि मुझे और क्या सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में क्या है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो कल्चर, सब कुछ, उनका ड्रेसअप, उनका लैंग्वेज, सब कुछ बदल जाता है। हर चीज में चेंजेस आ जाती है। तो लाइक दैट कि आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन तब होगी जबकि आपके जो आसपास की सोसाइटी खुश रहेंगे। तो मेरे मन में, मेरे दिल में बस एक ही चीज चलती रहती है कि मैं दूसरों को की खुशी के लिए खुद को कैसे खुश करूं दूसरों की खुशी से। तो ये है कि मुझे कुछ सोशली कुछ बड़ा करना है, और कुछ अच्छा करना है, जिससे कि हमारे बीच सोशल चेंजेस हो जाए। हम्म। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड मेरा इवनिंग। क्वेश्चन है कि हम लोग इस लेवल पे समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आप लोग समाज के लिए जैसे कि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, स्कूल्स में हो, और एक आपको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो रही है, आपके स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कि मुझे भी लाया कि आपके बीच में, कि आपको मोटिवेट करूं। सर को आप लोग थैंक्स बोलिएगा मेरे बाद, कि उन्होंने मुझे ढूंढ के लाया और आपके बीच में रखा। तो बेसिकली आपको अच्छा समाज के लिए कैसे कर सकते हो, आप लोग घर के आसपास अपने सोसाइटी को देखो। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे याद है कि एक दिन के लिए ना आपको डीसी बनने का मौका मिल रहा था हमारे स्टेट। बेसिकली मेरा होम टाउन हुआ धनबाद उसमें। तो फिर उसमें मुझे ये इंटरेस्ट था, मैंने अपने पूरे कॉलोनी को 1.5 डे में पूरा क्लीन करवा दी, जस्ट टू अचीव दैट अवार्ड। ठीक है ना, कि मुझे वो अवार्ड को हासिल करना किया। बट वो मेरा एक बचपना था। उसके बाद मैंने सोचा ये मैंने 1.5 दिन में एक अचीवमेंट के लिए उसे साफ करा। उसके बाद से मैं ध्यान देने लगी कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे मैं उसमें चेंजेस लाऊं, कैसे उसमें इन्वेंट करूं, कैसे मैं प्लांटेशन ड्राइव चलाऊं। आप लोग
पढ़ाई के साथ साथ पे अपने बर्थडे में जैसे बोला जाता है कि एक प्लांटेशन करो। एक प्लांटेशन करने से कितनी लाइफ है, अभी कोविड-19 में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो कितनी चीजों की कमी हो गई थी, उसको हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। आप लोग पढ़ाई के साथ में खुद को सोशल रखो, अपने आसपास में देखो कि आपको क्या कमी है, क्या चेंजेस चाहिए, तो आप उसको बेहतर कर सकते हो। और फिर जैसे कि अवेयरनेस कैंप हो गया कि गरीब, अभी भी देखते हो कि आसपास में लेडीज जो होंगी, जो ओल्ड, तुम्हारे घर पे कोई मेड या कोई आती होंगी, उनको साक्षर बनाने की कोशिश करो। साक्षर मीन्स कि उनको सिग्नेचर करने नहीं आती है, तो उनको साइन करने के लिए आप मोटिवेट करो, उन्हें बताओ कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो। तो एक स्मॉल, कोई छोटे तरीके से भी आप बड़े लेवल तक जा सकते हो। मैं आज इस मुकाम पर एक छोटे छोटे कार्य करके मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड सोशल कनेक्टिविटी की वजह से मुझे ये मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इसमें एक चीज बहुत अच्छा है ये कि जब आप कनेक्ट कर जाते हैं ना छोटे छोटे चीजों से, तो बड़ी अचीवमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। अब जब छोटे छोटे काम को ही आप कंसिस्टेंट लेवल पर करते हैं ना, लगातार करते हैं और बिना किसी इच्छा के करते हैं, तो वो जो खुशी महसूस होगी आपको, उसका एक अलग मजा होता है। और वो मजा के आगे ये सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट्स ये सब जो होते हैं ना, उसका कोई मायने एक्चुअली फिर नहीं रह जाता है। तो जो जो खुशी आपको मिलती है वो बहुत अप्रतिम होती है। तो ये हमें छोटे छोटे लेवल से शुरुआत करना चाहिए, अपने घर से करना चाहिए, फिर अपने मोहल्ले से करना चाहिए, ठीक है, फिर आप बड़े लेवल पर आप समाज में जा सकते हैं, उसके बाहर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन किनका था? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम रानी कुमारी है और मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने करियर में क्या चुनौतियां फेस किए हैं? चैलेंजेस जैसे कि चुनौतियां लाइफ में, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे जिन्हें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कोई बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा है और फिर उसके पेरेंट्स या कलीग्स या उनके सोसाइटी के मेंबर्स नहीं समझते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। वैसे ही मैं सोशल बहुत खुद को कनेक्ट कर पाती थी। तो मुझे याद है 2017 में मैं हमारे पीएम से मैं मिली थी। 14,000 स्टूडेंट से मेरा सिलेक्शन सेकंड पोजीशन में हुआ था। स्टेज में मैं थी और वीआईपी पास मुझे मिला था, 2017 की बात है। तो फिर मेरे को एक सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी मिलती थी, जिसमें मैं घर आती थी, पुलिस पूरे फोर्स रहते थे, फिर जाती थी, वो नाइट के 10 to 11 बज जाते थे या 12 भी कभी कभी बज जाते थे। तो जो आसपास के लोग रहते थे उन्हें पता नहीं रहता था एग्जैक्टली कि मैं इतने लेट करके कैसे आ रही हूँ, क्या चीज हो रही है। तो फिर उन्हें नहीं पता था, जब ये मुझे अवार्ड मिला, ये मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, तो उन्हें पता चला कि मेरा किस लेवल में कितना मेहनत था, कितना मैंने शिद्दत से हर एक काम किया और मैं स्टॉप नहीं हुई हूँ। मेरे को अवार्ड मिलने के बाद नॉट अ सिंगल डे कि मैं फ्री रही हूँ। मैं आपको 2-3 दिन पहले ही आपसे कनेक्ट कर पाती, बट मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन मैं सोची कि नहीं, आप लोग के साथ जुड़ना ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोग के बीच जुड़ूं। तो मैं आप लोग के पास आ पाई हूँ। तो चुनौतियां आपको हर फेज में फील करना पड़ेगा। जैसे आप लोग को पढ़ाई में भी कभी कभी मन लगता होगा, गिव अप करते होगे कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैथ्स पसंद नहीं हो तो आपको लगता होगा कि नहीं मेरे को और नहीं बनाना। बट आपको उसके लिए अपने आप को, जैसे मेरी एकेडमिक में भी मैं एमएससी की मैं बताऊं तो 1% बस मेरी कम थी जो टॉप जिन्होंने करा। तो वो चीज रहता है कि आप खुद को कितना एक्टिव रखते हो हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज में। मेरी सोशली भी मैं एक्टिव हूँ, एकेडमिक भी अच्छी है। तो आप लोग ना पढ़ाई को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दो। पढ़ाई के बगैर कुछ भी आप नहीं ले सकते हो, कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हो। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखो, इंडल्ज करके रखो कि आप उनके साथ भी अच्छा कर सको। जी चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि हमें एकेडमिक पर ज़्यादा फोकस देना है। और एकेडमिक में भी आपको ये देखना है कि हम जो सोशल मीडिया
और मोबाइल और जो एडिक्शन आज के समय में हो रहा है उनसे थोड़ा सा बच के रहें। और एक हॉबी बनाइए कि आप रात के समय में सोते समय कम से कम एक बुक पढ़ें और कहानियां पढ़ने की कोशिश करें और नई नई जानकारी लेने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छा प्रयास होता है हम लोगों के लिए। यामिनी रेज करके अपना है, यामिनी अपना क्वेश्चन पूछे। Yes, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Myself Yamini Sinha. First of all, feeling very proud to have you in this gathering right now. And मेरा Thank you. क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके करियर में क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा हो? Any most struggling part in this whole journey? स्ट्रगलिंग नेशनल कैंप्स में हमेशा जाना पड़ता है। एक्चुअली मैं बहुत एक्टिव रही हूँ, एनएसएस में मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ, बहुत सारा मैंने वर्क करा है। तो फिर मुझे एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जयपुर जाना पड़ा था। मुझे याद है कि इसके अलावा मुझे कोविड-19 से पहले गोवा जाने का था, बट कोविड की वजह से नहीं जा पाई मैं। तो फिर होता ये है कि आपको जब जाना होता है कहीं तो आपकी एकेडमिक में भी असर पड़ता है। आप कहीं जाते हो छुट्टियां लेकर के, जैसे कि मैं अभी कर्नाटक गई, बैंगलोर वगैरह गई, फिर उसके अलावा मैं प्रवासी दिवस में गई। तो मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रही थी, बट मैंने कोशिश की कि मेरा दोनों चीज मैनेज हो पाए। तो आपको तभी मतलब कि परेशानी और तभी आपको होता है कि जब आपको एक साथ बहुत सारा वर्क रहता है आपकी लाइफ में, एक चीज नहीं रहती है। तो मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज को लेकर के। समटाइम ये होता था कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उन लोग को समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता था। और मेरे फादर को कुछ नहीं पता रहता था। उनको जब अवार्ड से पहले पता चला कि मैं इतने दूर तक पहुंच गई हूँ और इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे मिल गई है। मेरी मदर ने, मैंने जैसा कहा कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मदर ने किया। तो उन्हें हर चीज पता रहती थी और उन्हें हर बात की खबर रहती थी कि मैं किस डायरेक्शन में। आप लोग जानोगे कि मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखी है, आज तक हॉल में कभी जाके मैं मूवी नहीं देखी। नहीं ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ मैं कभी भी ऐसे नॉर्मल पार्टी वगैरह, फ्रेंड जोन से थोड़ा दूर रहती थी। मुझे लगता था जो इम्पोर्टेंट है, मैं मेरे को बचपन से ही जो चीजें इम्पोर्टेंट लगती थी मैंने उसको ही प्रेफरेंस दिया। उसके अलावा मैंने किसी चीज को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं दी है। हाँ। सही है। तो ये हो गया तरीका कि आप अगर बेकार की चीजों से जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो आप अपने टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है। और Yes, होता क्या है ना कि हम अपने टारगेट तो बनाते ही हैं, लेकिन टारगेट के आसपास जितने भी आपके जो प्रायोरिटीज वाले नहीं है वो सब खड़े जो हो जाते हैं ना, वो आपको रोकते हैं वहां तक पहुंचने में। तो हमें टारगेट पर फोकस करना चाहिए हमेशा। चलिए कनक रेस करके अपना हैंड। कनक। Yes, sir. कनक। Good evening हाँ again, ma'am. good evening. Good evening. Ma'am, I want to ask you a question that what inspired you to join NSS? ये क्वेश्चन। हाँ Yeah, basically, हेलो। हाँ। सब कोई अपनी म्यूट कर लें क्योंकि वो म्यूट कर लीजिए तो आवाज पहुंच में आएगी। यस। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि मैं सोशल थी, जितना ज्यादा होना चाहिए। बचपन से ही मैं बहुत सोशल थी, गरीबों का फिक्र करती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी। और मैंने बताया नहीं कि 2016 में मैं अपने इलेक्शन फाइट करी, कॉलेज इलेक्शन, और उसमें मैं एक अच्छे पोस्ट में प्रेसिडेंटशिप में थी। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी शुरू हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कि आपको जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको मैं शॉर्ट आउट करना शुरू कर दी। तो साथ साथ क्या हुआ कि मैं सोशल वर्क कर रही थी, प्लांटेशन ड्राइव और मैनी मोर सोशली वर्क कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं 2018 में एनएसएस के बारे में मुझे पता चला कि बेसिकली ये आपको पॉलिटिक्स के अलावा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सोशल हूँ एज वेल एज आई एम लिटिल बिट पॉलिटिकल ऑल्सो, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं इलेक्शन फाइट करी उस टाइम में, जो माहौल रहता है तो आपका पूरा जो रहता है ना, जो पॉलिटिक्स का सेम उसी टाइप का रहता है।
तो 18 में मैं ज्वाइन कर ली थी, बट 2019 में जब मेरी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुई, बीएससी बॉटनी मैंने करा था, कंप्लीट होने के बाद मैं जैसे ही स्विच करके रांची आई, तो रांची आने के बाद मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन फाइट करूं और एक मैं अपने आप को पॉलिटिकल फील्ड में लेकर के आऊं। बट मैंने पॉलिटिकल नहीं चूज करा, मैंने अपने आप को सोशल बनाना चाहा एट दैट टाइम। तो मैंने एनएसएस को फिर से रिज्वाइन करा 2019 में, और फिर 1920 और अभी भी मैं कंटिन्यूस एनएसएस के लिए वर्क कर रही हूँ, क्योंकि एनएसएस आपको और कोई बिना पॉलिटिकल पार्टी के आपको एक सोशल कनेक्टिविटी देता है, सोशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने सोसाइटी को एक खूबसूरत बना सको, एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सको। तो ये आपके जैसे नेशनल यूथ पार्लियामेंट हो रहे हैं, उसमें भी आपको एनएसएस को एक प्रिविलेज मिलता है, एक आपको अपना एक प्रेजेंस अपना देने का मौका मिलता है कि आप उसको लीड करो और उसको एक टीम लीडर के तौर पर या एक अपने आप को शो करने का मौका मिलता है। जी। यस, ये इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं कि जैसे मैम ने बताया अभी कि कॉलेज में भी आपका इलेक्शन होता है और स्कूल लेवल पर भी इलेक्शन होता है। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं ना, हेड बॉय, हेड गर्ल और स्कूल कैप्टन बनते हैं ना। तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि क्योंकि हम लोग इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि हम लोग सही डिसीजन ले पाए कैंडिडेट को चुनने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में एक पूरा इलेक्शन कैंपेन चलता है। वो कैंडिडेट अपना प्रचार भी करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पर वो लोग विन करके आते हैं। तो मैं खुद रांची यूनिवर्सिटी विन की है और वो इस तरह से नेतृत्व करती चली आ रही है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी समस्याओं को पहुंचाना। तो स्कूल में क्या होता है ना कि स्कूल कैप्टन का क्या काम होता है, स्कूल में बच्चों की समस्याओं को प्रिंसिपल तक पहुंचाना और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। मैं भी क्लास मॉनिटर थी, तो वो चीज क्योंकि मैं स्कूल में भी थी, स्कूल के बाद कॉलेज में भी गई, तो वो आप में लीडरशिप क्वालिटी वो आप में शो होना शुरू हो जाता है, आप में लीडरशिप दिखनी शुरू हो जाती है। आप बोलते हो, आप कभी भी हेजिटेट नहीं करते हो कोई भी सिचुएशन में। तो वो आपका जो क्वालिटी डेवलप होता है ना, तो वो आपके एकेडमिक के साथ में होता है। आपको एकेडमिक में भी अपने आप को ध्यान देना होगा और अपने पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा। बहुत अच्छा, ये जरूरी है। क्योंकि आजकल यस मैम, आप क्योंकि आजकल देखिए सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, सब कोई सारे सब्जेक्ट तो चूज कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करती है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका क्या इंटरेस्ट है, जैसे पूछते हैं ना व्हाट इज योर हॉबी, टेल मी अबाउट योर हॉबी। तो वो हॉबी एक सिंपल सा शब्द नहीं है, एक वर्ड नहीं है, ये आपको पूरा आपको बता रहा है कि आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है। तो उसकी पसंद को आपको बड़ा बनाना होगा। जैसे कि मैं बोलूंगी कि मेरे हॉबी में मैं आई एम सोशल एक्टिविस्ट, आई लव टू डू सोशल वर्क, तो वो आपका एक हॉबी हो गया, उसमें आप क्या बड़ा किए हो। तो मैंने उसमें इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, मैंने एकेडमिक के अलावा अपने आप को सोशल बना करके मैंने इतने बड़े मुकाम तक खुद को लेकर के गई हूँ और एक अपनी पहचान बनाई है। ये होता है आपका हॉबी। यस, और अगला क्वेश्चन कौन पूछ रही थी, जिनका कनक? अच्छा, जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है वो पूछिए। अंकित और आदित्य राय, आप पूछो। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम, आई एम अनन्या सिंह। गुड इवनिंग। एंड माय क्वेश्चन टू यू इज दैट आप इतने पैशनेट हो अपने काम को लेकर, इससे सुनकर और समझकर हमें भी बड़ा इंस्पायरिंग फील होता है। तो आप इस अपने करियर में, अपने सोसाइटी में आप क्या अपने 5 से 10 सालों में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, जिसको देखकर आपको भी फील हो कि हाँ मैंने कुछ काम करा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ, बिकॉज जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि आप लोग में से क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोग इतना सोच पा रहे हो, आपको एक लेवल पता है कि मेरे को अब तक जो मेरी बड़ी बड़ी इंटरव्यूज हुई है उसमें भी मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छी पूछी गई, उसके लेवल में आप लोग पूछ रहे हो। तो इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि आप लोग
लोग कितना शार्प माइंडेड हो, कितना आप लोग ज्यादा सोच सकते हो। वही मैं देखती हूँ आपके जो 7th 8th 6th के बच्चे हो गए या 9th के बच्चे हो गए, जब जाते हो गवर्नमेंट स्कूल, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन आप सीबीएसई में और आपके जैक बोर्ड में। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है एकेडमिक को लेकर के। तो मेरा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल को भी एक प्राइवेट स्कूल के कंपेरिजन कर पाऊँ, उसमें चेंजेस ला पाऊँ, और उसको मैं आप लोग के मुकाबले उनको इक्वली और पैरेलली चलाने की कोशिश करूँ। क्योंकि आपके जो हमारे यूथ हैं, हमारी जो अपकमिंग यूथ है, वो प्राइवेट स्कूल से भी है और गवर्नमेंट स्कूल से भी है। तो हमें एज मच इतना करना है कि हमारे जो सोसाइटी के हर एक तबके के लोग, वेदर वो अमीर है या गरीब है, वो हर एक तबके के लोग वो आगे बढ़े और खुद को एक डेवलप्ड नेशन, अपने नेशन को मैं ये भी डेवलपमेंट से डेवलप्ड बनाने की कोशिश करूंगी कि मैं और कितना अच्छा करूं कि अपने देश के लिए कुछ मतलब कुछ चेंजेस ला पाऊं। तो चेंजेस लाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही मजबूती से काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन किनका था? अगला प्रश्न, चलिए अडिबा। यस सर। अडिबा, हाँ आप अपना क्वेश्चन पूछिए अडिबा। कनेक्टिविटी इशू। अच्छा, और आदित्य राय, आदित्य अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ आदित्य राय। गुड इवनिंग मैम, आपको कैसा लगा जब मैम आपको अवार्ड मिल रहा था? हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है ये, ठीक है। कि ये शायद लेट किया देते हैं हाँ ज्वाइन। ये क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं सर, बच्चे हैं। बहुत अच्छा फील रहा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे यूनिवर्सिटी स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली मैं भी आप लोग के बीच से ही निकली हूँ। एक बच्चा जो कि खुद को सोशल बनाता है, उसके बाद वो एक लेवल में काम करते रहता है अपनी मेहनत से। उस 100 पेज की फाइल बनाई जिसमें मैंने अपनी हर एक पेजेस, बहुत सारी फोटोज मिस भी हो गई कि मेरे पास इतना फोटोज हम लोग कलेक्ट करके रखते भी नहीं है। बहुत सारा चीज हम लोग मेरे साथ बहुत सारी चीजें भी हुई, तो हम लोग उतनी डेटा को हमेशा रखते नहीं है। बट फिर भी वो डेटा कभी कभी आपका बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो मैं उस मुकाम को पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया था, इसलिए वो शिद्दत था, मेरा मेहनत था, बहुत बड़ी खुशी हुई और एक एक्साइटमेंट था कि मुझे अब ये मेरे पहला मतलब कि इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, तो ये मेरा खत्म नहीं है, ये मेरी शुरुआत है कि मुझे और अच्छा वर्क करना और मेहनत करना। ज्योत्सना। यस सर। हेलो मैम, फिर से एक बार। मैम, आप मार्क्सवादी स्टूडेंट फेडरेशन की उपाध्यक्ष रही हैं, तो मैम उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने कौन कौन से काम किए हैं? प्लीज मैम, हम सबको जानने में बहुत अच्छा लगेगा। क्या रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन प्लीज? ओके मैम। मैम, आप मार्क्सवादी स्टूडेंट फेडरेशन की उपाध्यक्ष रही हैं, तो मैम उस पे मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? आपने क्या क्या जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, फेस किया? तो मैम वो सब प्लीज आप हमें बताइए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने कुछ ही 2-3 महीने उस पार्टी के साथ रही थी। एक्चुअली मुझे समझ आया कि जब मैं पार्टी के थ्रू, आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए तभी वो आप इलेक्शन फाइट कर सकते थे, वो कॉलेज की बात थी। तो मैं उस पार्टी का टैग लेकर के नहीं, 1-2 इंटरव्यूज और न्यूज़पेपर्स में आए थे, बट मैं उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पॉलिटिकल नहीं बनना था। क्योंकि आप जब पॉलिटिकल बनते हो तो आप सोशल कहीं ना कहीं नहीं बन पाते हो। छुप जाता है। हाँ, तो वो चीज को मैंने खत्म किया क्योंकि मुझे अपने कॉलेज को साथ में लेकर चलना था।
पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट्स में नहीं जानी थी, मुझे पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना था। तो मैंने पॉलिटिकल खुद को नहीं बनाया और उसके साथ मेरी कोई मेमोरीज या कुछ मेरे साथ कनेक्टिविटी नहीं रही थी पार्टी के साथ, क्योंकि मेरे को कॉलेज का वर्क करना था। तो मुझे याद है कि बस एक दिन ज्वाइनिंग का कुछ ऐसा हुआ था, उसके बाद मैं कभी उस पार्टी के साथ या कुछ ऐसा काम नहीं किया। मैं आज तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं की हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अभी तक काम नहीं की हूँ। बट अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसके साथ मैं हूँ, क्योंकि जो अच्छा काम करता है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। तो जो अच्छा वर्क करेगा मैं उसके साथ हूँ हमेशा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है ये यस किसने, अंकित। अंकित आप क्वेश्चन पूछिए अपना, अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अंकित। Yes, sir. Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग। Ma'am, my question to you is that, ma'am, what are your major strengths and weaknesses? मैं ये passionate, I am a hardworking person. My passion is to do something different from others. Like I have to do something unique. My best quality is I have to do lot of things. Like I have to change my society. And my weakness is sometime my mood swing. दिस इज माई मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मूड स्विंग कभी कभी कर जाता है, क्योंकि जब आप गलत देखते हो, जब आपको समझ आता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है। जैसे कि मैं अभी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, अपनी झारखंड गवर्नमेंट के बारे में बता रही हूँ कि मुझे मूड स्विंग इस तरह होता है कि मैं जैसे चेंजेस चाहती हूँ, आप लोग को देखती हूँ, आप लोग के क्वेश्चंस को मैं देख रही हूँ, तो एक आपका लेवल है। इस जगह मैं किसी और बच्चे को लेकर आ जाऊं दूसरे बोर्ड्स के, तो बहुत डिफरेंस दिखेगा हमें, उनके बातों से डिफरेंस दिखेगा, उनकी क्वेश्चन से डिफरेंस दिखेगा, और वो समझ आ जाएगा कि आपके लेवल क्या है, उनके लेवल क्या है। तो फिर वीकनेस बोल सकती हूँ कि जो चीज़ों मुझे नहीं पसंद है, उसको देख करके मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं परेशान साबित करने लगती हूँ कि शायद मैं खुश नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, दैट्स इट। चलिए, ये तो अच्छी वीकनेसेस है ये, और ये जो वीकनेस है ना, ये आपको मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे सिस्टम को चेंज करना है, और ये जो मोटिवेशन होता है ना, बूस्ट करता है किसी भी तरह से, और ये मोटिवेशन सब में होना भी चाहिए कि हमें अपने वीकनेस पर आज ही के लीजिए कि हमारा ये लास्ट इवेंट 23rd को हुआ था। 23rd को हम लोग का था सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो उस दिन हमारे इवेंट में हमारे वाइस चांसलर ने कहा कि हम लोग का मेरा एक विलेज था, एडॉप्टेड विलेज, जिसमें मेरी ये स्टोरी भी पब्लिश हुई थी यूनिसेफ में, कि उसमें मैंने गरीब बच्चों को कोविड-19 के समय में पढ़ाया। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खुद को, मतलब कि होता है ना कि नशे के मुक्त नहीं, अवेयर नहीं करके उन लोग हमें, हाँ, खुद को अवेयर नहीं किए हुए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो अल्कोहल फ्री बनाने का हम लोग का ये विश था, सरनी जैसा था। तो फिर आज मैं गई थी ये थाना में, आज जो हुआ था फ्लैग होस्ट वगैरह, मुझे बुलाया गया था। तो फिर उसमें मैं गई, तो वहां पे मैंने बात रखा, तो उन्होंने भी ये कहा कि वहां के लोगों को मतलब कि अवेयर करना बहुत नामुमकिन है, बट हमने ये ठाना कि हम लोग करेंगे, उस जगह को चेंज करेंगे। तो हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है कि उन्होंने कह दिया कि ये मुमकिन नहीं है, बट हमारी कोशिश कि उनकी कैसी कोशिश को सक्सेसफुल बनाया जाए। जो हमारा थीम है, हमारे जो मोटो हैं, हमारे जो मन में बातें चल रही है, उनको कैसे हम फुलफिल कर सके, उनको कैसे सक्सेसफुल बनाए। तो वही होता है, एनएसएस में आपको लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज कराती है, आपको सोसाइटी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट कराती है, आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ पर्सन बनाती है, आप खुद को कितना मोटिवेट करके रख सकते हो, और वो आपकी स्ट्रेंथ बनती जाती है, खुद को इतना ऑनेस्ट बनाते जाते हो, ऑनेस्टी में जरा भी कमी नहीं आती है।
तो ये सब आपके जो क्वालिटीज होते हैं ये आपको एक एनएसएस और एक बेहतरीन व्यक्ति के रूप में नजर आती है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही बात है। अदिबा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप बोल रही थी पूछने के लिए। उनका स्टेबल हो जाता है तो हाँ पूछिए। Yes, ma'am. चलिए तो ये I am Adiba. हाय अदीबा। अदिबा, आपके क्वेश्चन। नेटवर्क इशू है। हाँ अदिबा, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स। हाँ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अदिबा, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछ लूंगा मैम से। नेटवर्क स्टेबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, और किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और अदरवाइज मैम अगर अलाउ करेंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि मैम का टाइम बहुत ज़्यादा पैक रहता है, और इन्होंने बोला था कि भाई 7:30 से 8 या फिर 8 के 8:30 का ही आपको टाइम देंगे, तो आप लोगों ने अभी तक उनका 18 मिनट और ज़्यादा ले लिया है। तो अगर और किसी के पास कोई क्वेश्चन है। मेरे लिए मैं बच्चों को कहना चाहूंगी, वर्क हार्ड, डू समथिंग यूनिक। जितना आप लोग देखो, अब अपने आप को ना एक भीड़ से हटा करके चलने की कोशिश करो। आप लोग चमकते हुए तारे की तरह हो, क्योंकि आप लोग जब शाइन करोगे ना तो फिर क्या होगा कि वो खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी आपके पेरेंट्स के लिए। और जैसे कि आप लोग अभी डीमोटिवेटेड फील करते होगे समटाइम एंजाइटी, स्ट्रेस, समथिंग बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो वो सब भी फेस करना पड़ता है। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ, फोकस ऑन योर स्टडी एज वेल एज योर हेल्थ। बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ का भी ख्याल रखो। साथ में साथ आप लोग अपने आप को इतना सेंसिटिव किसी चीज को लेकर के नहीं बनाओ कि आप लोग बहुत इमोशनल हो जाओ। मेरे पूरे जर्नी में मैं खुद को इमोशनल अब कभी कभी हो जाती हूँ, या देख करके सिचुएशन हो जाती है, बट खुद को इमोशनल कभी भी पब्लिकली क्यों ना करो, क्योंकि जब आप खुद को इमोशनल बनाते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस सिचुएशन से आप भागते हो। उस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करके खुद को अलग साबित करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि आप भीड़ से हट के चलो, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ही, ठीक है, तो वो होता है। हाँ ये गौरव, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में कभी एम्बैरेस्ड मोमेंट आया? एम्बैरेस्ड मोमेंट कैसे? एम्बैरेस नहीं, इनका कहने का मतलब है ना। हाँ नहीं, एम्बैरेस्ड मोमेंट ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक गुड बुक में हमेशा रही हूँ टीचर्स के, और फिर गुड बुक में रही हूँ। किसी भी जगह जाती हूँ तो मेरी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब बन जाती है। मैं लाइफ में मुझे ये मिला, ऊपर वाले ने दिया है कि मुझे हमेशा अच्छे लोगों से कनेक्शन बनी है अब तक। मतलब कि मैं हमेशा अच्छी फ्रेंड्स को अपने आप से कनेक्ट कर पाई हूँ, जो कि बहुत सिंसियर हो, जो बहुत ऑनेस्ट हो, जो बहुत लॉयल हो। तो वो सब चीज मैं देखती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और एम्बैरेस मोमेंट तब आती है आपके लाइफ में जब आप कहीं ना कहीं खुद को मतलब कि उस जगह पर मतलब कि सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हो, या समटाइम क्या होता है कि आपको उस चीज को मतलब कि हासिल करने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या कोई भी चीजें हुई हो। तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी एम्बैरेस मोमेंट नहीं रहा है। हमेशा पॉजिटिव ही रहा है सब कुछ अब तक, और ये दुआ भी है कि वो पॉजिटिव रहे और वैसा कोई मोमेंट ना आए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही रहेगा, और लोग पॉजिटिव हैं भी। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, और उसमें पॉजिटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। हमें अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए सोच समझ कर,
तो मैं थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूंगा मैं इसे, और ठीक है। तो आज मैं बस आज का सेशन मैं इतनी तक रखना चाहता हूँ। पर पीयूष प्लीज आप अपना ये करें। देखिए मेरे हार्ड वर्क और इसका, ये मेरे रूम का, ये देखिए कबर्ड। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बहुत ये मैं सुंदर। तो देख लो, पूरा कवर्ड भर गया है मैम का। ठीक है, ये बताएं हार्डवर्क और सिंसियरिटी। ठीक है, तो आज से ही आप लोग कसम खा लो, ओथ ले लेना है कि भाई सोशल मीडिया से और यूट्यूब से कनेक्ट तो रहना है, लेकिन उतना ज्यादा उसको एडिक्ट नहीं बनाना है, और अपने फोकस करना है अपने काम पर, अपने टारगेट पर। ये बहुत ही अमेजिंग है इस तरह से देखना कि पूरा आपका जो ये है ना कवर्ड है, पूरा भरा हुआ है। और ये मैं चाहता हूँ कि आप सबों के घरों में एक स्पेशल कवर्ड बने जिसमें पूरे ट्रॉफीज और मेडल्स भरे होने चाहिए। ये पूरे स्टेट से, अलग अलग स्टेट का ये नेशनल अवार्ड्स है, और फिर अभी मुझे स्कूल से भी मिले। कबर्ड के बाहर भी अब रखना पड़ रहा है मुझे कि मेरे पास प्लेस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके हार्डवर्क और भी पैशनेट, आपको जो भी करना है कि आप बिल्कुल पैशनेट खुद को बनाओ कि मुझे इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछ रही है अदीबा कि आपके लाइफ में जब आप इतना अचीव कर रही है मैम, तो होता नहीं है कि बहुत सारे लोग आपके दुश्मन भी हो जाते हैं या फिर आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करती हैं, उनसे आप कैसे मतलब कि ये करती हैं? ये अदीबा का क्वेश्चन था ये। इग्नोर देम, बस एक ही लाइन में शॉर्ट इग्नोर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि इतनी सक्सेस कैसे मिल रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी खुशी में उतने खुश होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे, उनके जो हैं वो लोग नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल वर्ड जो होता है कि इग्नोर करो, क्योंकि आपकी लाइफ आपको कुछ अलग करना, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आपको अपने लाइफ को एंड करना, खत्म करना है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। इग्नोर करना ही सबसे बड़ा एक आपके पास शस्त्र है। आप उन पर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो आपका जो एफर्ट होता है ना वो बर्बाद होगा। आपका जो पूरा पावर है ना, जो आपको लगानी है अच्छी जगह पर, वो आपका बर्बाद होता है। तो एक चीज मैं बताया कि मैं इतना वर्क करती थी, साथ में जब मेरे एग्जाम्स आते थे ना, तो मैं सारे सोशल साइट से दूर हो जाती थी। मैं कोई भी सोशल साइट्स यूज नहीं करती थी। मैंने 10th में 3 months, मतलब कि मेरा मार्च में पेपर था, तो मैंने दिसंबर से ही अपने सारे अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिए थे। 9th में मेरा अकाउंट बना था। तो वो सब चीज था कि मैंने सोचा कि पढ़ाई भी बहुत मायने रखती है, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपकी थॉट्स, आपकी नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ में। तो फिर आप जितना एजुकेटेड खुद को रखोगे, कि जितना आपके पास शिक्षा रहेगी, उतना ज्यादा आप खुद को कुछ बता सकते हो, कुछ समझा सकते हो और उनका जवाब दे सकते हो। तो ये क्वालिटीज आपकी शिक्षा से ही मिलती है आपको। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बात बोलना चाहूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है, दैट इज विंग्स ऑफ फायर, वो आप लोग जरूर पढ़ें, और वो आपको एक मोटिवेशन, एक आपको इंस्पिरेशन देगी, और आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करें। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस टू यू ऑल। एक और प्रत्युष प्लीज। Yes, sir. So now at last, I would like to thank our esteemed guest, Ms. Falak Fatima ma'am, for taking time from her busy schedule. And I would also like to thank our principal, sir, vice principals, board of governing council, and our career counselor, Mr. A.K., Mr. G.K. Aranya, sir, for giving us this wonderful opportunity. And stay tuned for the next episode. And thank you. एक बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ रही है मिताली कि जो झारखंड वासी कुछ दान लेते हैं, ठीक है, तो मिताली आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। बस चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मिताली का। बहुत सारे चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, कि झारखंड वासी कुछ ठान लेते हैं ना, तो वो उसे अचीव करके ही दिखाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जैसा जब हुआ तो
बहुत अच्छा चीज है, ये तो बहुत अच्छा। महेंद्र सिंह धोनी भी बन गया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये तो सर बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोग को कि झारखंड स्टेट का आप नेशनल लेवल में रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो बहुत पीछे है झारखंड। मैं गई थी इतने दूर तक, मुझे भी स्टेट को बहुत दूसरे नजर से देखा जाता है। तो मैं चाहती हूँ एक शाइनिंग स्टार के तौर पर हमारे स्टेट को देखा जाए, एक चमकता हुआ, मतलब कि एक कैसा होता है शन हमेशा चमकते रहता है सूरज की शाइनिंग स्टार। रोशनी। वैसे ही बच्चों को भी चमकते हुए रहोगे, आप लोग रिजल्ट अच्छा करोगे, आप लोग कंपटीशन कॉम्पीट करोगे, तो आप लोग को एक अच्छे नजर से, एक अच्छे तरीके से देखा जाएगा। तो आप ही लोग भविष्य हो हमारे देश के, तो आप लोग पर ही सब चीजें होती है। और आप लोग बहुत मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, और सर आप लोग के बहुत अच्छे हैं। आप लोग को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनसे कनेक्ट रहो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा मैम, आपने बहुत लंबा टाइम दिया हम लोगों को आज, और मैंने इनको बता दिया था कि केवल 30 मिनट्स का ही टाइम हमारे पास है, लेकिन आपने बहुत अच्छा टाइम दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं और ये लोग, देखिए सीखना है, हमें हर जगह से सीखना चाहिए। मैम का लाइफ पूरा बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनको, और यही उनका अनुभव है। तो जब आप दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं ना, तो आप अपना जर्नी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है ना, एक ऐसा शस्त्र है आपके पास, जिससे आप हर लड़ाई लड़ सकते हो, जीत सकते हो। तो एजुकेशन को अपना वेपन बनाना चाहिए, अपना हथियार बनाइए उसको, और लड़ाई में उतर जाइए। तो जो व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लगती है उसको आप बदलिए, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है उसको आप अपने ढंग से प्रस्तुत कीजिए कि हाँ ये मेरा अपना व्यू है ये। तो ये सारी चीजें आप कब करोगे, जब आप एजुकेट करोगे अपने आप को। तो ये आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और इसके लिए मैं फलक मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, और हमारे बच्चे भी आपसे कनेक्ट रहेंगे, जिससे कि वो जान सकें कि अभी और क्या क्या हो रहा है। और एनएसएस के साथ हमारे बच्चे निश्चित रूप से जुड़ेंगे, और मेरे तरफ से जो प्रयास होगा इसके लिए मैं भी अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कहकर इसको करवाने की कोशिश करूंगा अपने स्कूल में भी, जिससे कि उनको और आगे का रास्ता मिल सके। हम सभी पार्टिसिपेंट के तरफ से, जैसा कि प्रत्युष ने कहा, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए फिर से आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। तो आज का थैंक सेशन यू। यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन। Thank you, ma'am. थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू टू थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। वेरी मच। टू ऑल। थैंक यू मैम। So all of you now leave one by one.